A very yes, ma'am. So Just wait a second. Okay. Let me share the screen. So a very good afternoon to you all. I am Ayushi Gupta, currently studying in class 11th Commerce stream, and so today as हम सबको पता है कि आज हम ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जो हम दिन भर में उसको अपने आसपास देखते हैं, राइट। सुबह उठते हैं, हम ब्रश करने जाते हैं, ब्रश इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट, एंड द पेस्ट इज द कवर ऑफ पेस्ट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फिर हम नहाने जाते हैं, then soap dish is also made up of plastic. Then we come here, then we go for a breakfast, mama has made sandwiches, sauce is also made, the cover of sauce is also made up of plastic. Sometime I just pondered that when will this plastic leave me, right? So today we will talk about something that we see every single hour of the day, right? So as ma'am introduced, this is some kind of a monster, right, which is not leaving us alone even for a minute in our day, right? So let's know this monster today very well to इरेडिकेट द प्रॉब्लम्स कॉजिंग बाय इट। तो हम आज इस मॉन्स्टर को जानेंगे जिससे कि इससे जो प्रॉब्लम्स है वी कैन फेस इट बाय आवर पर्सनल एक्शंस और आवर कम्युनिटी एक्शंस, राइट। So let's start. Navya, any problem there? Can you see my screen? No. What's the problem? Wait a second. I think there's some network issue. Now you can see the screen? Yeah. We are not audible? Yes, you are. We are audible. Just now you can see the screen? Yeah. Perfect. So today we are carrying forward the initiative of R. Nisarg Foundation. Our Cambridge school is privileged enough to carry forward this initiative, right? तो आज हम Cambridge school, the students of Cambridge school, हम आज R. Nisarg Foundation का जो initiative है, we are trying to spread their message. So the heading is let's dive into the world of plastics. So क्यों ना world of plastics में जाके उसको थोड़ा अच्छे से जाना जाए. So as we all know, today is Gandhi Jayanti. So on the occasion of Gandhi Jayanti and the birthmark of Swachh Bharat Abhiyan, let's know this. And also I would like to pay my gratitude to Lal Bahadur Shastri. Today is his anniversary also. So let's get started our session today, right? So as I have already told you, this is the R. Nisarg Foundation initiative that we are privileged enough to spread their idea. तो आज का हमारा टॉपिक है नो योर प्लास्टिक एंड इनिशिएटिव टू बिकम कॉन्शियस प्लास्टिक कंज्यूमर। इसका मतलब है कि पहले तो हम अपने प्लास्टिक को जानेंगे और उसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम पता रहे हम किस टाइप का प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, राइट। तो कॉन्शियस यूज ऑफ प्लास्टिक इज हम उस चीज को जाने जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं, राइट। सो this means the conscious use of plastic. Navya, your screen sharing is off now. I think there is some network issue. I am continuously sharing it, but let me wait. Just wait a second. So then I am going to share my screen. The screen share mode बार-बार बंद हो रहा है वो. Just wait a second. Now my screen is visible? Yeah, visible. Wait a second. Yeah. Now? Yeah. So the content of today's workshop. तो आज हम किस चीजों के बारे में जानेंगे. First, identifying different types of plastic. तो जैसा कि हम नोटिस करते हैं कि जो प्लास्टिक है जिससे हमारे प्लास्टिक चेयर बना है और द प्लास्टिक जो पॉलीथिन वाला प्लास्टिक है वो अलग होता है, राइट। तो इसी तरीके से प्लास्टिक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो आज हम उन प्लास्टिक्स के बारे में, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, ओके। देन सेकेंड इज पर्सनल एक्शंस, कॉन्शियस यूज ऑफ प्लास्टिक। पर्सनल एक्शंस मतलब कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि हम प्लास्टिक को यूज करना तो बंद नहीं कर सकते, बट जितना भी हम यूज करते हैं उसको
एक सही तरीके से यूज करें, राइट। तो हम अपने पर्सनल लेवल पे हम खुद क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देन कम्युनिटी एक्शंस मतलब कि हम मिलकर, सब लोग मिलकर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले चुकी है अभी तक इकोसिस्टम में, राइट। तो पर्सनल एक्शंस विल नॉट बी इनफ, सो व्हाट आर द कम्युनिटी एक्शंस that we can take? Here is sending for recycling. तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो रिसाइकलिंग के लिए जाए। तो ये सब हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इज क्वेश्चन आंसर सेशन, तो जिसमें कि आपके जो भी डाउट है या क्यूरीज हैं, आपको जो हमसे पूछना है वो आप पूछ सकते हो, और हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि हम आपके आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर कर सकें, राइट। सो Navya, again your screen is like, so फिर अब हम स्टार्ट कर। Is it visible? Is it visible? No. I think there are some network issues. Okay, just try. Just wait a second. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि आज हम आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में जानेंगे, देन पर्सनल एक्शंस, देन कम्युनिटी एक्शंस, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट से, मतलब कि जो कुछ फैक्ट्स हैं प्लास्टिक के बारे में, राइट। तो द फर्स्ट फैक्ट इज इंडिया प्रोड्यूसेस 26,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी डे। मतलब कि ये अमाउंट नहीं है जितना हम प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, ये वो अमाउंट है जो हम प्लास्टिक फेंक देते हैं, जो हम अपने घरों से निकाल देते हैं, इंडस्ट्रीज से निकल जाता है। 26,000 टन्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू 9,000 एलिफेंट्स, जो कि 9,000 हाथियों के वजन के बराबर है। और डू यू नो दैट एक हाथी का वजन 2,000 किलोग्राम से 6,000 किलोग्राम तक हो सकता है, राइट। तो इतना प्लास्टिक तो हम सिर्फ वेस्ट कर देते हैं। तो कैन यू इमेजिन हाउ मच प्लास्टिक वी प्रोड्यूस इन एवरी सिंगल डे? So this is some fact to ponder about, right? Like, so the next fact is out of that 4 million tons just used for packaging. तो हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक, उसमें सिर्फ 4 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक होता है वो पैकेजिंग में यूज होता है। पैकेजिंग जैसे कि हम दूध खरीदने जाते हैं तो दूध पैकेट में आता है, राइट, दैट इज पैकेजिंग। डेयरी मिल्क लेने जाते हैं वो पैकेजिंग, लेस का पैकेट ले, तो वो पैकेजिंग कैसी होती है? वी जस्ट यूज इट एंड थ्रो इट अवे, राइट, वन टाइम यूजेस। तो 4 मिलियन टन्स तो प्लास्टिक हम इस जगह यूज करते हैं जिसे जस्ट हम यूज करते हैं, और वन टाइम यूज वाला, राइट। तो इसके इतने बड़े अमाउंट के कारण ही आज हम पैकेजिंग में जो प्लास्टिक यूज होता है उसके बारे में ज्यादा जानेंगे। ओके, सो टुडे वी विल फोकस। तो इस जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने देखा हम इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, इतना वेस्ट करते हैं, ड्यू टू दिस ह्यूज अमाउंट, first of all we would like to play a game, कौन बनेगा करोड़पति। I think everyone knows what is कौन बनेगा करोड़पति, right? तो और हाँ, first of all इसमें कोई लाइफलाइन नहीं होगी, so don't ask me for a lifeline, okay? So ये क्वेश्चन for कौन बनेगा करोड़पति is how do we approach this problem? हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने, सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, राइट? तो हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? योर फर्स्ट ऑप्शन इज बैन प्लास्टिक। जो भी प्लास्टिक हम अपने आसपास देखते हैं उनको बैन कर दें, right? Without any alternatives, without any substitute, we just ban this plastic, right? Your second option is recycle plastic. मतलब कि जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करें हम। ये मिसकंसेप्शन है, ये धारणा है कि सारा प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, राइट? तो हम आगे वाली वेबिनार में जानेंगे कि कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है और कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता है, ठीक है। C is opt for sustainable alternatives, innovate for plastic substitute. मतलब कि प्लास्टिक की जगह हम और क्या-क्या चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं, क्या चीजें इन्वेंट कर सकते हैं जो प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट कर दे। And D is all of the above. So please do write your answers. इसका आंसर जो होगा please write in your chat box. Later I will check which option get the most responses. ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए we will go through this whole webinar. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था कैन बी बैन ऑल प्लास्टिक। तो जस्ट अभी आप जहां बैठे हो उसके आसपास देखो, आपको कुछ ना कुछ प्लास्टिक का मिल ही जाएगा। सो विदाउट सब्स्टिट्यूट, उसको बिना कुछ करे, उसका कोई सॉल्यूशन बिना निकाले, क्या हम उसे बैन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे दिन भर में हम इतना प्लास्टिक देखते हैं, राइट? तो एकदम से अगर वो बैन हो जाएगा तो वो सब जो काम चल रहा है उसके भरोसे वो कहाँ जाएगा, राइट? तो I don't think we can ban all this plastic that we see around, right? ये मैं मानती हूँ कि कुछ कुछ चीजों को जिसमें हम प्लास्टिक यूज करते हैं
उनको हम किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उनकी जगह बदलते हैं. लाइक हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, सो दैट वी देन वी ब्रिंग द पॉलीथिन एट होम. एक एक सब्जी के लिए एक एक पॉलीथिन में लेके आते हैं. तो इससे अच्छा हम एक जूट बैग या क्लॉथ बैग बनवा लें, जिससे कि हम बाहर जाएं तो उसमें सब्जी हम ला सकते हैं और इतनी सारी पॉलीथीन से उसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट. तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने भी ये सेशन अभी कुछ दिन पहले ही लिया था, तो इस सेशन के बाद हमने भी घर पर क्लॉथ बैग्स बनवाए, जिससे कि हम बाहर जाएं तो इतनी सारी पॉलीथीन से उसको अवॉइड कर सकते हैं. और हम ये सब बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा, राइट. तो हम लोगों ने अभी अपने घर पर क्लॉथ बैग्स बनवाए हैं, सो दैट वी व्हेन वी गो टू द मार्केट वी कैन जस्ट पुट आवर स्टफ इन दैट cloth bag and avoid these polythenes, right? Or Bisleri bottles we can substitute with our own bottle, not just steel bottles, with our own bottle. जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कहीं भी हम कोई फंक्शन में जा रहे हैं, तो instead of buying these Bisleri bottles again and again, we can carry our own bottle, right? तो हम बार बार बिस्लरी खरीदने से अच्छा हम अपनी बॉटल एक अपने साथ कैरी करें. हम मैंने भी अपनी एक अब आदत बना ली है that whenever I go somewhere I carry my own bottle, right? तो ये बहुत इजी है, जब भी हम कहीं जाए अपनी बोतल साथ ले सकते हैं. तो हम ये इतना सारा जो प्लास्टिक है वो बहुत इजी स्टेप से वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट, नव्या अगेन चेक इट. सो नेक्स्ट इज बैनिंग ऑल दिस पॉसिबल. हम अपने आसपास देखते हैं कि ये सब केचप, टाटा सॉल्ट एंड एवरीथिंग इज जस्ट पैक्ड इन प्लास्टिक. सो डू यू रियली थिंक दैट वी कैन ऑल दिस जस्ट इंस्टेंटली? Right, I think you got your answer, right? Navya, check your screen sharing. Then हमारा second option था what about recycling, right? तो पहले जैसा कि मैंने बताया कि सब लोग ये सोचते हैं कि all the plastics can be recycled, right? If we are producing, it's okay, we can recycle. So to solve this B option, what about recycling? तो अब हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, कौन सा नहीं. Now, next, the fact is, do you know, of 9.4 million tons of plastic waste, only 40% is recycled. मतलब कि अगर हम 100% किसी चीज का लें प्लास्टिक का, तो उसमें से सिर्फ 40% रिसाइकल हो पाता है. Like 60% is just waste and हमारे सिर्फ हमारे लैंडफिल्स में पड़ा रहता है और हमारे नेचर को हार्म करता है, राइट. तो 40% रिसाइकल एंड 60% इज जस्ट वेस्टेड. तो सिर्फ 40% ही क्यों रिसाइकल होता है, इसके दो कारण है, राइट. तो ये दो कारण क्या है दैट वी विल कम टू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, राइट. द वे वी जिस टाइप से हम प्लास्टिक को सेग्रीगेट करते हैं. तो ये सब आई विल हैंड ओवर टू माय फ्रेंड नव्या Jen, who is from class 10, to explain you what are the different kinds of plastic, how हम उन plastics को कैसे segregate करते हैं, कैसे करते हैं. So now, Navya, here you go.